Welcome my dear students. Apomixis, Polyembryony and Parthenocarpy. These are the topics of the sexual reproduction in flowering plants which are going to be discussed in this section, in this video section now. और यही लास्ट टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के. सो बने रहिए, समझते रहिए. इसमें मैं आपको कुछ बेसिक नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो ऑलरेडी मैं करता हूँ, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस. सो स्टार्ट किया जाए. ओके. एपोमिक्सिस. Apomixis is the phenomena in which seed is formed, but seed is formed without fertilization. फिर से समझिए. एपोमिक्सिस में सीड बनता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता. इट मीन्स दिस इज प्योरली अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही सीड बनना चाहिए. बट इन दिस केस सीड इज फॉर्म्ड बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सिंगैमी नहीं हो रही. देयरफॉर एपोमिक्सिस is a type of asexual reproduction or asexual reproduction that mimicry कर रहा है, that mimics the sexual reproduction, and this phenomena was discovered by Hans Winkler, and he says that it is the replacement of normal sexual reproduction by asexual reproduction without fertilization. बाद में प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी पे महेश्वरी जी ने बहुत काम किया, एंड ही इज़ द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी. आप जानते हैं उनको. फिर उनके बाद उनके जो चाइल्ड थे वो उनके स्टूडेंट भी थे, एस.सी. महेश्वरी जी. उन्होंने भी बहुत काम किया. बट महेश्वरी जी ने जो कंट्रीब्यूट किया उसमें एपोमिक्सिस को भी उन्होंने काफ़ी स्टडी किया था. और एपोमिक्सिस को सिंपल उन्होंने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें 3 या 4 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया था. रिकरेंट टाइप, नॉन रिकरेंट टाइप, वेजिटेटिव टाइप, एंड ऑल दिस आर नाउ वी डिस्कस वन बाय वन. ओके. सो द वेरी फर्स्ट वन इज नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस. ये हम महेश्वरी के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं. So non-recurrent apomixis is one of the best defined apomixis type, as in this case the megagametophyte develop very usual method by simple meiosis, and megagamete is also formed, and all the structures inside the embryo sac are very clearly formed, as you know about the sexual reproduction in flowering plants. Now what happens? That embryo is developed, but in this case, since it is apomixis, in this case no fertilization takes place. Embryo is developing in this case, maybe developed all via this method, but without fertilization. So development of embryo takes place, but without fertilization. Now in this case, the development of embryo takes place via 2 different methods. So if you say it is an embryo sac, it is an embryo sac having 3 antipodals and 2 synergids and 1 egg cell. Okay. So this is a mature female gametophyte having all cells and nuclei. Now if the embryo is developed via the egg cell, so it is called, since it is developed from the egg, it is parthenogenesis type of development, parthenogenesis type of non-recurrent apomixis. But this is not the only case. The embryo may also develop one of the antipodals, either from this one or this one or this one. So embryo also develop from here, or it may develop from synergid also. or it may develop from one of the nuclei of
सेंट्रल सेल, दैट इज पोलर न्यूक्लियाई में से किसी एक न्यूक्लियाई से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है, इससे अलग और इससे अलग। इन ऑल दीज केसेस ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड। ये तो आपने ऑब्जर्व किया, सभी के सभी सेल हैप्लॉइड, न्यूक्लियाई जो है हैप्लॉइड है। एंड इफ एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, the embryo have haploid set of chromosome as compared to its mother cell, and the new plant if germinate and form, and if अगर वो पूरी तरह से mature, if it mature completely, so that plant is actually haploid plant. Actually that was haploid plant, as they have haploid number of chromosome as compared to their parent. Is it clear? So during their flowering, this process cannot be repeated again. Therefore this is called non-recurrent apomixis. अब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस अगर एग के थ्रू इसका डेवलपमेंट होता है, इसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं नॉर्मली, और अगर इसके अलावा किसी और से होता है अदर देन एक्चुअल एग सेल, देन इट इज एपोगैमी, मीन्स गैमीट के अलावा, ठीक है। तो अगर एंटीपोडल से ये होता है तो ये इसको हम कहेंगे एपोगैमी टाइप ऑफ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इज इट क्लियर? सेकेंड वाला जो होता है उसको रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं, कई बार उसको स्पोरोफाइटिक भी कहते हैं क्योंकि वो डिप्लॉयड कंटेंट का होगा। सो recurrent apomixis, the second one is recurrent apomixis, and it is nowadays generally known as gametophytic apomixis. Okay, gametophytic apomixis. Now in recurrent one, what happens that the female gametophyte is actually diploid. Yes, it is actually diploid, having diploid number of chromosomes, and it is equal to the parent cell, because meiosis doesn't complete here, does not going to be complete here in this case, in recurrent type of case. Therefore this sac was diploid, so there is no problem if it develop into the embryo and the newer plant was formed by this. Again this type of phenomena takes place, therefore it is, since it is again takes place, it is a recurrent type of apomixis. ऐसे एम्ब्रियो सैक नॉर्मली आर्किस्पोरियल सेल या कुछ और बेसल सेल से ही डेवलप हो जाते हैं, एंड दैट्स वाई द कंटेंट इज 2 times, यानी एज इट इज जो उनके मदर सेल का कंटेंट होता है वैसा ही होता है, मियोसिस कंप्लीट नहीं हो पाती है, एंड दैट्स व्हाई इट इज रिकरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्सिस. Nowadays it is also known as gametophytic apomixis. Now the third one is adventive embryony. एडवेंटिव एम्ब्रियोनी को न्यूसेलर एम्ब्रियोनी भी कहते हैं या स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहा जाता है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं साइट्रस की स्पीसीज मैंजीफेरा इंडिका, गार्सिनिया, यूफोर्बिया डल्सिस. ठीक है, इस केस में नाम से पता चल रहा होगा कि इट इज एडवेंटिव, मीन्स adventitious part develop into embryo rather than the sexual part. So if you draw this one, this is the embryo sac, and here on now say this is the embryo sac having all those components which are generally present in this, that is the mega gametes, antipodal cells and other cells, synergids, and it is the mega gametophyte. Now in the case of adventive embryony, what happens that
A mega gametophyte cannot participate in the formation of embryo at all. Yes, exactly. A mega gametophyte cannot participate in the formation of embryo. Rather than this, the nucellar cells, the integument one, or the nucellus or integuments, cells of nucellus or the cells of integument participate in the formation of embryo. So these are some adventitious parts of this gametophytic structure. Therefore it is termed as adventive embryony. मेगा गैमेटोफाइट के अलावा या तो न्यूसिलस की सेल से एम्ब्रियो बनेगा या इंटीग्यूमेंट की सेल से एम्ब्रियो बनेगा, और वो डिप्लॉयड होते हैं इसलिए स्पोरोफिटिक होंगे नेचर में, और डिप्लॉयड कंटेंट के होंगे। और क्योंकि मेगा गैमेटोफाइट के अलावा है एडवेंटिशियस पार्ट की तरह, जैसे कि रूट्स होते हैं, एक तो प्रॉपर रूट होते हैं, एक एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं जो अलग से डेवलप होते हैं। बिल्कुल, तो मेगा गैमेटोफाइट जो सेक्सुअल पार्ट है उसके अलावा अलग से डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए इनको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का नाम दिया जाता है। और एग्जांपल्स आपने पहले ही देख लिया है। अब लास्ट वाला जो होता है वो वेजिटेटिव, दैट वाज वेजिटेटिव वन। तो फोर्थ वन होता है, उसको हम वेजिटेटिव कहते हैं। ओके, लास्ट वन इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेजिटेटिव अपोमिक्सिस। वेजिटेटिव अपोमिक्सिस में क्या होगा कि जो नॉर्मल फ्लावर पार्ट होगा, जो फ्लावरिंग पार्ट होगा, दैट इज गाइनोसियम पार्ट। एक्चुअली ये पूरा का पूरा फ्लावर ही कह सकते हैं, दैट वाज रिप्लेस्ड बाय सम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, or you can say bulbil like structure, vegetative bird like structure and bulbils like of structure. And these vegetative birds or propagules, you can say specifically that are vegetative propagules. Vegetative propagules or bulbils, they germinate while still they are attached on the plant, they germinate. So this type of apomixis is called vegetative apomixis, and this is one of the best method which are found frequently in Allium, Fragaria. Agave is one of the best example. Agave is the one of the best example for vegetative apomixis. इसके अलावा गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस जो कि सेकेंड टाइप का एपोमिक्सिस था, उसको भी कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको मैंने ये देखिए यहाँ इस बुक में लिखा है और ट्राई किया है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज मिले। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशंस वगैरह में मिलता है, और ये बुक फ्लिपकार्ट, अमेजन और pothi.com पे अवेलेबल है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, सो पॉलीएम्ब्रियोनी इज अ वेरी कॉमन फिनोमिना। जब से एंटन वॉन लिवेनहॉक ने 1719 में इसको ऑब्जर्व किया है साइट्रस में, वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक ही साथ में 2 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, और पहली बार उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद से आज तक ये बहुत सारे प्लांट की फैमिलीज़ में देखा जा चुका है पॉलीएम्ब्रियोनी की फिनोमिना को। फिर उसके बाद इसकी पूरी स्टडी होनी शुरू हो गई। तो एक्चुअल में पॉलीएम्ब्रियोनी है क्या? जब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो एक ही सीड में डेवलप होने लगता है और बाद में ये जर्मिनेट हो भी सकता है, तो इस फिनोमिना को ही हम पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। देयरफॉर occurrence of more than one embryo in a seed is known as polyembryony, and it is first of all at the very first time it is observed by and described by Anton von Leeuwenhoek in 1719 in a plant of species citrus। ठीक है, और वहाँ से आज तक ये हर जगह देखा जाता। फिर ये पॉलीएम्ब्रियोनी की भी बहुत स्टडी हुई, तो पता चलता है कि ये एम्ब्रियो के क्लीवेज से हो सकता है, अलग अलग फर्टिलाइजेशन से हो सकता है, कुछ वेजिटेटिव सेल्स की डेवलपमेंट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये बहुत जगह फिर बाद में फैलता चला गया। पॉलीएम्ब्रियोनी के फ़ायदे क्या हैं?
इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पॉलीएम्ब्रियोनी का फ़ायदा ये है कि एक साथ में 2 एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, यानी उनको डेवलप होने के बाद प्लांट्स को अलग अलग कर सकते हैं और वो हमें एक साथ में 2 प्लांट्स मिलेंगे ऑफ द सेम स्पीसीज, तो हायर ईल्ड हो गया। इसके अलावा इसकी जो नॉर्मल फ्रूट की ईल्ड होती है वो भी ठीक ठाक होती है। नेक्स्ट, अगर न्यूसेलस की किसी सेल से एम्ब्रियोज का डेवलपमेंट होता है तो वो 100% डिजीज़ फ्री होते हैं। डिजीज़ फ्री प्लांटलेट बनाने के लिए पॉलीएम्ब्रियोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीएम्ब्रियोनी के कुछ यूजेस हो गए। इसी तरह से एपोमिक्सिस के यूज़ क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है एपोमिक्सिस का, जो अभी हमने पढ़ा। एपोमिक्सिस का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे फ्लावर्स का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो नेचर इज़ अ मास्टरपीस। तो नेचर हैज़ डिज़ाइन और डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी नेचर ने खुद को उस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए एक टूल प्रोवाइड किया, दैट इज टूल दे प्रोवाइड, द नेचर प्रोवाइड अ टूल। तो टूल प्रोवाइड किया कि आप खुद को सर्वाइव करेंगे। यानी इसमें क्या होगा, क्योंकि मियोसिस हुआ नहीं भाई, एपोमिक्सिस में मियोसिस हुआ नहीं, और मियोसिस हुआ भी तो फिर वो नॉन रिकरेंट टाइप का हो गया। अगर रिकरेंट टाइप के सीड बनते हैं तो उसमें मियोसिस हुआ नहीं, मियोसिस हुआ नहीं तो पेरेंट की ही कॉपी है, यानी एक तरह के क्लोन बनेंगे, प्योर लाइन बनेंगे और सर्वाइवल्स ज़्यादा होंगे। सर्वाइवल वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा रेट होगा। तो हमें मल्टी कॉपीज मिलेंगे और वो उसकी जनरेशन, उस प्लांट की जनरेशन वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाएगी, वो कंटिन्यू करेगी। फिर जब पॉलिनेटर्स मिलेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। लेकिन तब तक से अगर मान लीजिए कभी पॉलिनेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाया तो क्या प्लांट को डेड हो जाना चाहिए? तो इसके लिए नेचर ने ये टूल प्रोवाइड किया। तो ये सिग्निफिकेंस हो गए। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है कि अगर फ्रूट का डेवलपमेंट बिना क्या होते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे, है ना। सो यहाँ पे दिया है व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। तो फ्रूट का प्रोडक्शन अगर हो जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, वो फर्स्ट चैप्टर के वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। और ऐसी केसेस में जो पार्थिनोजेनिक फ्रूट्स होते हैं उनमें सीड नहीं होते हैं या इतने हाईली रिड्यूस्ड होते हैं कि पता ही नहीं चलता है। तो उसमें जो खाने वाला पोर्शन होता है, जो ईटिंग एडिबल पार्ट होता है, दैट इज मच मोर देन द नॉर्मल वन, मच मोर देन द नॉर्मल वन। तो ये भी उसका एक फ़ायदा हो गया कि पार्थिनोजेनिक फ्रूट। अब एग्जांपल में आप बनाना, ग्रेप्स, आप देखते हैं ग्रेप्स में नॉर्मली सीड नहीं मिलते और कभी कभी अगर बहुत बड़े ग्रेप्स से मिलते भी तो बहुत छोटा रिड्यूस पार्ट। बनाना में तो शायद ही कभी आपको सीड मिला होगा। सो पार्थिनोजेनेसिस भी ऐसे ही हो सकता है। पपाया भी इसका एक एग्जांपल हो सकता है। सो उस स्ट्रक्चर को जो कि फ्रूट बन गया लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनिक फ्रूट, और प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसी तरह की प्रोसेस बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट एनिमल्स में भी होते हैं। वो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था। स्पेशली हनी बीज में जो वर्कर्स बनती हैं वो हैप्लॉइड नेचर की होती हैं। मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये इस चैप्टर से बस इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप ड्रॉप बॉक्स में अपने क्वेरीज डाल दीजिए, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।